very senior fellow in HR, and very nice and important topic. I'll say that part. Why nice? Because it's close to my heart. Design thinking has been always close to my heart. I've been demonstrating the example of ideas to the team, lot of people, and I will not waste my time in explaining all this thing, because I would like myself to listen to Sanjay Dixit sir on dynamics of design thinking, how to improve your throughput, how to engage yourself, take it to the next level, because we all have this capability traps, and how to move out of that capability trap is going to be core. He may be talking about York-Stedman curve and everything, but that is all important to us. And as a kid, if you all are able to listen this thing in your early phase of life, you can drive to the next level. I'll now request sir to take it to us. Sir, let me intervene in between. We have two more, speakers in between before I hand over the charge to Sanjay sir. We have one of the students, Miss Janvi. Janvi, if Anuj sir, if Janvi can be muted. Janvi, yes, Janvi Khatrani or yes, Janvi Khatrani. Yes, sir. Sir, we have a protocol that students introduce. Thank you. They also learn. And then we have Pradeep sir for his opening remarks, and then we will. Sure. Yes, Janvi, you can unmute yourself. Yes, ma'am. So, hello, good morning, everyone. I, Janvi Khatrani, currently pursuing computer science and engineering from Indrashil University. Firstly, I would like to thank my faculty members for giving me this opportunity to introduce our today's speaker. It's a great pleasure for me to introduce Dr. Sanjeev Dixit. He is an award-winning management professional and an author of highly acclaimed culture transformation book, Plan C. He is a global HR leader with a distinguished career driving business transformation and sustainable human resource models across diversified business sectors. At Cadila Pharma, he is a global president, human capital management. Today, Dr. Sanjeev Dixit is going to talk us about how to achieve desired outcomes by design. This is a subject in which we should all be deeply interested, because a desired outcome is a way to make goals more specific. So without further delay, I would like to welcome Dr. Sanjeev Dixit. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Janvi. Now it's time for Pradeep sir for his opening. So welcome, sir, to this board of Indrashil University, sir. And good morning to all of you. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो मैं यहीं से कॉन्टेक्स्ट करता हूँ. हम हिंदी में बोल रहे हैं सर जानबूझ के, क्योंकि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट था कि जितना हिंदी में बोलेंगे या हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा. तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ सर. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लिसन, बिकॉज हम जिंदगी में कई चीज़ें डाल देते हैं भाग्य के ऊपर, या हमको मौका नहीं मिला, या हम उस घर में पैदा नहीं हुए, या हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. तो काफ़ी सारी चीज़ें हम उस पर डाल देते हैं कि अगर हमारा नसीब अच्छा होता था. एक साथ पढ़े हुए कई लोग जीवन में कई अलग अलग माइलस्टोन अचीव करते हैं, अलग अलग पोजीशंस अचीव करते हैं. एक ही क्लास में आईएएस से लेके और मतलब अलग अलग पोजीशंस पे लोग जाते हैं. तो कई बार लोग लगा देते हैं कि नहीं शायद किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी. तो उसको अपनी किस्मत के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम कैसे डिजाइन करें खुद को कि हम किस्मत के भरोसे ना बैठे, सब कुछ खुद कर सके. सर, ओवर टू यू सर on a very interesting topic of today. So thank you so much to begin with, Dr. Namrata, for having me, Mr. Abhinandan, Janvi and Pradeep, who's part of the Cadila HR team, for organizing this talk with Indrashil, which is part of the Cadila group. And I always feel very nostalgic talking to the people from the entire academic field, as well as connecting with the students, especially because I myself regard as a student of psychology, student of basics, student of I will say new learning, new ideas. So जैसा कि
नम्रता जी ने बताया, अभिनंदन ने बताया कि, और जानवी ने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही धन्यवाद। मतलब आई थिंक this is one of the, I will say, most interesting introduction been given, because it seems that I have achieved so much thing in life, but I believe it's a journey. What you achieve in life is a function of the journey, the milestones which you have kind of identified for yourself. But when you started your journey, you didn't know that you will achieve all those milestones. राइट। सो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो ऑडियंस है, और आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने इनपुट्स देते रहें कि जहां भी आपके कोई सवाल हैं, कोई चीज आप जानना चाहते हैं जिसके ऊपर आप ज्यादा तवज्जो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों और आपकी जो जिज्ञासा है उसका उत्तर मैं दे सकूं। जैसा कि आज का विषय है, हम किस तरीके से सफलता को एक डिजाइन के तौर पे अचीव कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, और सवालों में ही जवाब होते हैं, तो सवाल ये होगा सब लोगों के से कि जहां जितने भी जो 82 लोग मैं देख पा रहा हूँ, 82 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कौन है जो कि सफल होना चाहता है। सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये जरूरी है इस विषय को थोड़ा और नजदीक से समझने के लिए। तो मैं ये शुरुआत करूंगा कि कौन, जो यहाँ सब लोग सुन रहे हैं, कौन है जो कि सफल होना चाहता है। चैट बॉक्स में यस या वाई या एन टाइप कर सकते हैं। करेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं मैं सफल नहीं होना चाहता। तो मेरे ख्याल से मैं ये मान ले रहा हूं कि जो 85 लोग हैं, 85 के 85 लोग सफल होना चाहते हैं। सही सर, रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, इट इज बजिंग। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, और सारे वाई यस लिख रहे हैं। मालत्री, ध्रुव, राजल, बिजुन, क्या बहुत अच्छी बात है। तो हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, तो ये बात तय होगी। तो इससे मेरा जो आप लोगों के साथ अभी जो 1 घंटा रहेगा वो सफल हो गया, क्योंकि आप सब सफल होना चाहते हैं। तो ये विषय को जो मैं इस विषय के ऊपर जो बात करना है वो मेरे लिए फिर आसान हो गया। अब दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हम जो जितने लोग यहाँ हैं उनमें से कौन है जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। मैं भी खुद हाथ उठा रहा हूं। ठीक है, सब लोग फिर से यस यस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ने लिख दिया ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ, वी ऑल सर। तो ये यूनियन तीसरा है हमारे जो सबके बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब ये मैं तीसरा सवाल मेरा है कि जो हम लोग ने सबने कहा कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ हमेशा होना चाहते हैं, कितने लोग हैं 90 लोगों में से जो कम से कम आधा घंटा रोज किसी तरीके का व्यायाम और एक्सरसाइज करते हैं? और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आधा घंटा नियमित तौर पे हम व्यायाम करते हैं। मुझे इंप्रेस मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर, कुछ लोग ऑनेस्टी से इन्होंने एक्सेप्ट किया है सर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर इज कमिंग व्हिच इज सेइंग नो नो नो। सो मींस हमारा एम्बिशन तो है स्वस्थ रहना, लेकिन उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। चाहते तो हैं, क्या कहते हैं ना, मैं जानता हूं कि अगर मैं व्यायाम करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, लेकिन क्या मानता हूं? जानना पहली चीज है, मानना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज। जैसे हमने सबने बोला हाँ हम लोग सफल होना चाहते हैं, उसी तरीके से हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए क्या हम नियमित तौर पे आधा घंटा व्यायाम करते हैं?
उसी तरीके से सफल रहने के लिए हम वो क्या कर रहे हैं जो कि हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। वो आधा घंटे का क्या हम व्यायाम कर रहे हैं उस सफलता के लिए। मैं मतलब यहाँ पर एक रूपक के तौर पे व्यायाम को ले रहा हूँ और स्वास्थ्य को एक सफलता के तौर पे, एक रूपक के तौर पे यूज कर रहा हूँ, सिंबल के तौर पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक मेरा जो मैसेज है आप लोग समझ पा रहे हैं कि in order to achieve success there has to be some kind of a disciplined exercise which we have to do every day. Like if we have to be healthy, we have to spend 30 minutes doing some form of exercise, whatever form. Could be walk, could be jogging, could be yoga, could be meditation, but you have to do every day. Not once in a week or once in 15 days or once in a month. It will not give you that result. So मतलब ये तय हो गया शुरुआत के इस 5 मिनट के डिस्कशन में कि अगर हमें कुछ भी पाना है और उसको अगर हम सफलता कह रहे हैं या अच्छा स्वास्थ्य कह रहे हैं, उसके लिए हमें नियमित तौर पे कुछ ना कुछ करना होगा। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और सफलता के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमारे को एक्सरसाइज करनी होगी। अब वो क्या है, वो हमारे पर, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो तो हम जो हमारी जो पढ़ाई है, जिसके लिए हम लोग इंद्रशील में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सबसे पहली चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, जो शायद हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी अचीव some level of success in our life, and not only some level but high level of success in life, right? So that is very, very important. Now everybody, 95 people who are listening to this entire discussion, now tell me, will all the people will achieve the same level of success? That's the question. Now again the answer is no. Why? Why with the same Indrashil University, similar kind of faculty, similar kind of library, similar kind of infrastructure, similar kind of classroom, similar kind of environment, everything is similar, why there will be a relativity in terms of the success? ये सवाल बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मूलभूत है, लेकिन हमारे को ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं ना अपने आप से, तो हम एक जो है जवाब ढूंढने के लिए अपने मतलब दिमाग में एक कोशिश शुरू होती है कि भाई इसका जवाब क्या होगा, और जवाब हमारे अंदर ही है। जो भी मैं आज बात करूंगा ये बहुत ही मूलभूत बातें हैं, ये आप शायद बड़ी बड़ी किताबों में नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने तजुर्बे को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने अचीव किया है इन 47 सालों में अपने जीवन के, और 24 साल जो कि मैंने मानव संसाधन क्षेत्र में और कॉर्पोरेट में जो बिताए हैं, जो भी मेरे आज आपने जो शुरू इंट्रोडक्शन में जो बातें कही, वो मुझे नहीं मालूम थी 24 साल पहले कि मेरे बारे में कही जाएंगी, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम था कि कुछ ना कुछ मुझे रोज करना होगा जिससे कि मैं उस स्तर पे पहुंच सकूंगा, उस लेवल पे पहुंच सकूंगा। मेरी बातें मतलब कुछ सेंस बना रही हैं या ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब सत्संग चल रहा है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगा, जो फॉर्मूला अगर आप नियमित तौर पे लागू करें एक्सरसाइज की तरह 30 मिनट, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकूंगा कि आप लोग अपने जीवन में सफलता जो है वो बाय डिजाइन अचीव करेंगे। और ये फॉर्मूला जो है, मेरी जो किताब है जो कि प्लान सी नाम से छपी हुई है, मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब है। और प्लान सी का मतलब है सी स्टैंड फॉर कल्चर, कि आप किस तरीके का माहौल, किस तरीके का वातावरण बनाते हैं, जिस वातावरण में जो है हर आदमी जो है उपयोगी बने, हर आदमी जो है वो प्रोडक्टिव बने। तो वो इस किताब का मेन मर्म है, एसेंस है।
लेकिन उसी में एक चैप्टर है जिसमें ये फॉर्मूला के बारे में बात की गई है, जो मैं आज के सेशन के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन तब तक हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने शायद शुरुआत करी दी आपको ये बताते हुए कि उद्देश्य एक चीज है, लेकिन उसके लिए आप हर दिन नियमित तौर से जो काम कर रहे हैं वो आपको अपने उद्देश्य की तरफ लेके जाती है। चाहे वो अपने अपने क्लास में अव्वल आना, चाहे वो इंद्रशील यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीतना, चाहे वो अपने कैरियर में बहुत ही आगे तक सक्सेस पाना, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हम लोग अभी हमने बात कही कि सब लोगों को माहौल तो सबको सेम मिल रहा है, क्लासेस सेम मिल रही हैं, लाइब्रेरी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हर आदमी अलग अलग लेवल का सक्सेस पाएगा। क्यों? क्या रीजन है कि जो जितने भी 94 लोग 94 लोग सुन रहे हैं वो अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मतलब सक्सेस पाएंगे या रिलेटिव सक्सेस पाएंगे। कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, कोई थोड़ा सा कम हुआ और कोई और उससे कम हुआ। ऐसा क्यों? आपके हिसाब से क्या इसका मतलब क्या कारण हो सकता है? क्यों हमने अपने आप जीवन में लोगों को देखा है कि कोई तो बहुत आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया? क्या ये भाग्य की वजह से होता है? क्या ये जिसे कहते हैं कि ईश्वरीय देन है? क्या रीजन है इसका? Struggling means what? K.R. Patel is saying struggling depends on hard work and opportunities. Excellent, very good. Opportunities का तो नहीं मालूम, hard work मेरे कंट्रोल में है। सही बात है। Difference in hard work. Excellent. हिमांशु कह रहे हैं difference in hard work. Very good. Sir, why there is a difference in hard work? ध्रुव पटेल भी लिखा है सर, depends on focus and hard work. Excellent. I think very good answer, Dhruv. Depend on the focus. Focus on what? इस पर हमारे को फोकस करना जरूरी है। स्टडीज ऑन गोल, इंप्रूवमेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आई थिंक हम लोग जो है अपने विषय को जो है और विस्तार कर रहे हैं। फोकस ये बहुत ही मूलभूत बात है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बात है। फोकस जो है वो आपको मदद करता है कि किस तरीके से हम जिस चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, वो हमारे सक्सेस में ज्यादा से ज्यादा हमारे को मदद कर सके। और फोकस करने के लिए हमारे जो शरीर है उसमें कौन कौन से अंग हैं जो हमें फोकस करने में मदद करते हैं? बहुत मूलभूत सवाल पूछता रहूंगा मैं आप लोगों से। कौन से हमारे शरीर में जो अंग हैं जो हमारे को फोकस करने में मदद करते हैं? अभी हमने ये जाना कि अगर हम फोकस करेंगे तो हम जरूर सक्सेस जो है पाएंगे। तो कौन से अंग है जो मदद कर? आई, वेरी गुड। ब्रेन एंड हार्ट, माइंड, वेरी गुड। ब्रेन, ओके, चलिए ये तो नाउ साबित हो गया कि ब्रेन ही है, सबसे ज्यादा आंसर ब्रेन आ रहे हैं। और कौन सा दूसरा अंग है जो कि मदद करता है फोकस करने में? माइंड, ईयर्स, आईज। अच्छा, आप सारे अंग नहीं लिख रहे हैं, अच्छी बात है। मैं सोच रहा था आप सब लिख देते, हैंड, लेग्स, ईयर। वेरी गुड। आई थिंक हम लोग एकदम सही जा रहे हैं कि mind or eyes, these are the two organs in our body which help in the process of focus, right? Because eyes look at the thing and brain then start responding to the eyes in terms of whatever eyes is seeing. Okay? और अभी हम 10 सेकंड का एक एक्सरसाइज करेंगे, 10 सेकंड का, जिससे मैं आपको एक चीज साबित करूंगा कि ब्रेन की में क्या शक्ति है और आईज में क्या शक्ति है और फोकस की क्या शक्ति है। और हम जिस भी चीज पर फोकस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्सपैंड होती है। ठीक है?
और पावर ऑफ फोकस का एक मैं नमूना आप लोगों के सामने पेश करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज, और हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए करेंगे और आप जानेंगे कि कितना पावरफुल है हमारा ब्रेन और कितनी पावरफुल है हमारी चीज और कितना पावरफुल है फोकस। जो मैं एसेंस आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है कि फोकस, व्हेनेवर वी फोकस दैट थिंग्स एक्सपैंड। जिस पे भी आप चीज को फोकस करोगे वो एक्सपैंड करेगा। ओके, और इसको बड़ी ईमानदारी से इस एक्सरसाइज को करना होगा, क्योंकि हम क्लासरूम में तो है नहीं कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं और आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा हूं। तो हम ये मान के चलेंगे कि जहां जहां हम बैठे हैं, अपने अपने कमरों में, अपने अपने क्लासरूम में, जहां भी हम इस एक्सरसाइज को बड़ी ईमानदारी से करेंगे। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे 10 सेकेंड 15 सेकेंड की एक्सरसाइज से क्या सीखा, क्या आपका तजुर्बा रहा, और फिर इस विषय को हम और नजदीक से जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरों से जुड़ी है। मेरे पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ जरूरत है कि हम हर चीज को बहुत ध्यान से सुने और उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम सब लोग अपने अपने जहां बैठे हैं चारों तरफ थोड़ा नजर घुमाएं और उन चीजों के ऊपर फोकस करें जिनका रंग ब्राउन है। अपने सारे कमरे में और जहां भी हम बैठे हैं चारों तरफ नजर दौड़ाकर हम ये उन चीजों के ऊपर फोकस करें जिनका कलर ब्राउन है। आई होप कि सबके कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि ब्राउन कलर का होगा। हमने देख लिया? 10 सेकेंड हो गए। कुछ रिस्पॉन्सेज आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है चैट में। हाँ, सबने कर लिया। तो सबने अपने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और ये देख लिया कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो ब्राउन कलर की हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कलर ब्राउन। ओके, वेरी गुड। अब सब लोगों से मेरी गुजारिश है और मैं एक्सरसाइज के तौर पे अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए ईमानदारी के साथ, ठीक है? 5 सेकेंड के लिए आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि आंखें खोलिए, खोलिएगा मत। अपनी आंखें बंद रखकर अब आप उन वस्तुओं को ध्यान में लाएं जिनका रंग हरा है। कोशिश करें अपने कमरे में याद करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका रंग हरा है। आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलेंगे आप, और ईमानदारी से इस एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि तभी आप इस एक्सरसाइज से जो आपको जो लर्निंग मिलनी है वो मिलेगी। अब मुझे ये बताएं, आंखें बंद रखते हुए कितना आसान है आपको याद करना उन चीजों को जिनका रंग हरा है। आसान है? आप आसानी से याद कर पा रहे हैं कि आपके ही कमरे में आप जहां बैठे हैं वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हरे रंग की हैं। आंखें बंद ही रखें। आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। नम्रता जी कह रही है मुश्किल है, मैं उनका समझ पा रहा हूं। ठीक है, अब आंखें खोल लीजिए और अब आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कितना आसान रहा हरे कलर की चीजों को, हरे रंग की चीजों को याद करना जब आपने आंखें बंद कर ली थी। और अब आप देखिए अपने कुछ है हरे आपके आसपास? मैं तो नम्रता जी के पर्दों को देख के मैंने हरा रंग बोल दिया। थैंक यू सर। लेकिन मेरे ख्याल से हर एरिया में जहां भी हम बैठे हैं कोई ना कुछ चीज तो हरा होगा जरूर। और सिर्फ हरा ही नहीं, और भी रंग होंगे। नीला होगा, सफेद होगा, काला होगा, पीला होगा, लाल होगा। लेकिन क्या हुआ फिर इस पूरे एक्सरसाइज में? जब मैंने आपको बोला 10 सेकंड के लिए कृपया अपने चारों तरफ देखकर सिर्फ आप उन वस्तुओं पे फोकस करें, जो ब्राउन कलर की हैं। तो आपके आईज ने सिर्फ ब्राउन पे फोकस किया और आपके ब्रेन ने, जो कि कहने के लिए तो बहुत ही इंटेलिजेंट चीज है लेकिन वो थोड़ी तरीके से बेवकूफ भी है, क्योंकि जो उसको आप बोलोगे वही सुनता है। तो
उसने सिर्फ ब्राउन पे फोकस किया। ब्रेन ने क्या किया, मेमोराइज करना शुरू किया कि कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो ब्राउन हैं। ये क्लियर हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट। और दूसरे एक्सरसाइज में जब मैंने बोला आंखें बंद कर लीजिए, अब ब्रेन के पास जो फोकस करने का जो ऑर्गन था, आईज, वो बंद हो गई। द मोमेंट आईज गॉट क्लोज, नाउ ब्रेन फाइंड इट गॉट ब्लाइंड, वो एक तरह से अंधा हो गया। और जब मैंने ब्रेन को बोला कि भाई अब ये बताइए मुझे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी और हैं मेरे कमरे के आसपास और अंदर जो हरे कलर की हैं, मेरा ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मेमोरी में ब्राउन 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 स्टोर कर लिया। ये मैं आपको 10 सेकंड का तजुर्बा बता रहा हूं, और हम जिंदगी में सिर्फ ब्राउन देख रहे हैं। हमने कितने ग्रीन मिस कर दिए, कितने नीले मिस कर दिए, कितने रेड मिस कर दिए। ये है छोटा सा एक्सरसाइज। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है पूरे एक्सरसाइज में? कोई अपना लर्निंग शेयर करना चाहेगा? What they have learned as far as this subject called focus is concerned, the power of focus. And this is only a 10-second exercise. Just imagine how we have been leading our lives so far. What has been our browns? Which are the browns we are focusing so far? And will that brown help in my success? That is the question we are asking. This is the question we need to reflect upon. This is the question we need to introspect on. क्या कह रही हैं प्रांजल? क्या कह रही हैं? एन क्या है? एन क्या होता है? कुछ लिखना चाह रही हूँ। प्राज्वल, क्लैरिटी से लिखिए कि हाँ, क्या मतलब इसका कोई भी आप बताना चाहें, माइक ऑन करके, मतलब 1-2 पार्टिसिपेंट जरूर शेयर कर सकते हैं कि उनका इस पूरे 10 सेकंड 15 सेकंड के एक्सरसाइज से क्या सीखा या क्या सीख मिलती है इससे हमें, जो कि हम इमीडिएटली अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कल से या आज से। प्रदीप सिंह तो कुछ धर्म धुर्म में चले गए हो। तो दीपक सर आंसर दिए हैं। डेजिग्नेशन, व्हाट इज डेजिग्नेशन मींस, प्रदीप? Sir, we evaluate based on the designations. So that's how brown I see what post that person holds. So we start looking that angle to that person. So incorporated is very common. इस तजुर्बे से क्या सीखा? यही सर कि हमने यही ब्राउन, हमारा ब्राउन यही है कि हम लोगों का पता लगाते हैं कि भाई वो किस जगह पहुंचे। जैसे हमारे बैच के लोग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में पढ़े लिखे थे, तो पहला सवाल यही होता है आप क्या कर रहे हो आजकल। तो हमारा ब्राउन वही है कि आप उसके ओहदे से हम पता लगाते हैं कि भाई उससे कैसा बात करना है, क्या करना है। ये आपका फोकस है बेसिकली, आपका फोकस दूसरों के ओहदे पे है। ठीक है, ओके। और क्या? जी सर, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया, दीपक है, ये क्या बोल रहे हैं? सेम 3 का है, कह रहा है फोकस्ड ऑन सम अपॉर्चुनिटीज, उससे लर्निंग उसकी है, फोकस्ड ऑन सम अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो मिस्ड लॉट ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। व्हाइल वी फोकस ऑन ब्राउन we miss other opportunities also. Love Desai भी बोल रहा है फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह हो रखने से अच्छा ट्राई करना चाहिए कि हर एस्पेक्ट या थिंग पे हो। और पंकज ने बोला है माइंड इतनी चीज पे फोकस करते जितना हम उसको कम करने को बोलते हैं। माइंड उतनी चीज पे फोकस करता है जितना हम उसको काम करने को बोलते हैं। वेरी गुड। और क्या लर्निंग निकल रही है इस 15 सेकंड के एक्सरसाइज से? फिर मैं अपना आपको तजुर्बा बताऊंगा जो मैं समझ पाया जो आप लोगों के व्यवहार से। जानवी, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन स्पीक अप। हाँ, आप करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, और सीख ये रहे हैं कि फोकस में कितनी पावर है। और हमने 10 सेकंड में उस पावर का जो फोकस का जो पावर था वो देख लिया कि ब्राउन पे फोकस किया और हमें कुछ याद नहीं है। मतलब 10 सेकंड में हमने सिर्फ ब्राउन पे फोकस किया, और उसके बाद जब ने पूछा कि हरा कलर, ब्रेन ने जवाब दे दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्राउन पे फोकस किया। इसमें दोनों चीजें निकल के आ रही, अच्छी चीज भी और कुछ चीज जिसके ऊपर हमारे को और ध्यान देना होगा।
सर मेरा जो रिफ्लेक्शन है, हाँ मेरा रिफ्लेक्शन ये कि ब्रेन जो है उसका गेटवे जो है आईज है, एक तो वेरी गुड, दोनों मिलके जो है काम करते हैं, और उसको जैसे ही आँखें देखती है वो ब्रेन पे जाके प्रोसेस होना चालू होता है। सही, तो ब्रेन जो है ये दोनों बिल्कुल तारतम्य में मिलके काम करते हैं, दोनों वेरी गुड, तालमेल बना वेरी के करते हैं। और इसी तालमेल को ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रेन को बेचारा वो वही प्रोसेस करता है। बेचारा, चलिए आपने ये तो मान लिया कि वो बेचारा है, चलिए वेरी गुड। एंड हम अपने ही ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। ये भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है। वेरी गुड। सो अब हमने जो पहला जो सवाल पूछा था ना आप लोगों से, कौन है जो कि सफल होना चाहता है, कौन है जो कि स्वस्थ रहना चाहता है, सबने बोला था हाँ 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 हाँ, करेक्ट। अब मैं ये इस एक्सरसाइज के आधार पे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमने ब्राउन कलर है वो सक्सेस है, वो हेल्थ है, या कुछ और है? आप किस पे फोकस कर रहे हैं? आपका ब्राउन कौन सा है? आपके जीवन का ब्राउन क्या है? सवाल ये है, क्योंकि ये आपने देख लिया कि जिस भी चीज पे अगर आप फोकस करेंगे वो चीज जो है वो एक्सपैंड करेगी। ब्राउन जो है, क्योंकि आपने 10 सेकंड के लिए सिर्फ फोकस किया और वो इतना एक्सपैंड हो गया कि आपने कोई और कलर पे ध्यान नहीं दिया। तो इससे दो चीजें हम सीखते हैं। पहला कि हमारे को अपने जीवन के ब्राउन चुन लेने चाहिए और उसको इतने तवज्जो के साथ हमें फोकस करना चाहिए कि हम बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर हो जाएं। चाहे और भी कोई भी कलर हो वहां पर, हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एक तो लर्निंग ये सीखते हैं। दूसरा ये सीखते हैं कि हम ब्लाइंड ना हो जाएं उस ब्राउन से, हम उस ब्राउन के अलावा बाकी कलर को भी देखें। ब्राउन बहुत स्ट्रांग चीज है यहाँ पे। ब्राउन आपका गोल है, ब्राउन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है, ब्राउन आपका रीजन फॉर सक्सेस है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है जिस पे आप फोकस करेंगे वो आपको मिलेगी। अगर आप सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अगर सक्सेस आपका ब्राउन है, वो आपको मिलेगी, वो आपके दिमाग में हमेशा एक्सपैंड करेगी। हेल्थ अगर आपका फोकस है तो वो एक्सपैंड करेगा, वो आपका ब्राउन बन जाएगा और वो आपको हमेशा देन पुश करेगा कि आप हर दिन 30 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जो है नियमित रूप से कोई ना कोई व्यायाम करें। अब आप समझ रहे हैं लिंक? ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे को समझना, बिकॉज ये हमारा मूलभूत डिजाइन है। अभी अभिनंदन साहब ने डिजाइन थिंकिंग की बात कही। इट्स ए वेरी लार्ज एंड वेरी वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, लेकिन आई एम नाउ करेंटली फोकसिंग अगेन ऑन द वे वी आर डिजाइन्ड एज अ ह्यूमन। We have never focused on ourselves. We have never focused on the design of how we have been made by God. We've been always looking external. हम हमेशा बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते, और सब कुछ अंदर है। मतलब मैं फलसफा नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई यहाँ दर्शन शास्त्र नहीं सिखा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही मूलभूत, बहुत ही मौलिक बात की, कि हम जब फोकस की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो हम अपनी जो जानकारी है, अपने बारे में जो जानकारी है, उसमें उस फोकस में कितनी है, हमने अपने ऊपर कितना फोकस किया। एम आई द ब्राउन फॉर माई सेल्फ? That is a very, very profound, very basic, I think, reflection point for all of us today. और ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहीं भी हम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लेसन में, किसी भी क्लास में ये डिस्कस करते हैं। आई डोंट नो, मतलब
आप लोग बता सकते हैं, कभी ऐसा डिस्कशन हुआ कि हम अपने साथ कितना समय बिताते हैं, हम अपने ऊपर कितना फोकस करते हैं? और जब मैं हम की बात कर रहा हूं, हम अपने चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एंटिटी की बात कर रहे हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं रोज 15 मिनट, जो हम बोल रहे थे ना एक्सरसाइज की, नियमित रूप से मैं 15 मिनट या 20 मिनट अपने साथ बिताता हूं। मैं रिफ्लेक्ट करता हूं पूरे दिन में कि आज मैंने किन किन ब्राउन पे फोकस किया, किन किन उन ब्राउन्स के ऊपर मैंने तवज्जो दिया जो कि मुझे आने वाले समय में सक्सेस दिलाएगा। मैं हर रोज अपने आप से बात करती हूँ। क्या करती हैं बातें हितार्थी? बातें करना और अपने साथ समय बिताना अलग चीज है। इंट्रोस्पेक्ट करना बेसिकली सर, जो फंडामेंटल चीज है, जो मिरर के सामने, अच्छा मिरर के सामने आप बातें करती हैं। क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है हितार्थी आपके बातों का? क्या विषय होता है आपकी बातों का? इंटरेस्टिंग है, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत बात है लेकिन फिर भी अगर आप शेयर कर सकें तो बताएं। सर बाकी दो भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिया है कि माइंड, देवर्ष भी है, जो चर्च भी हुआ हो। नहीं हो रहा है। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 107 स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 111 तक गए थे, पर मेरे ख्याल से नट फ्लक्चुएशन के कारण भी थोड़ा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और आई थिंक हम जो सुन रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ आज की जो भी स्टूडेंट्स ने भी अच्छा बताया था। जब आप ब्राउन की बारे थे तो दो बच्चे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिए कि माइंड को जितना अलाउ करते हैं वो उतना ही एनालिसिस करता है। सो हमें क्या एनालिसिस करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है, बिल्कुल स्टडी सक्सेस। और दूसरे ने कहा है कि सर हम लोग अपने गोल्स को ब्राउन कलर से देखते हैं और उसके चक्कर में ग्रीन मतलब हेल्थ और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। ये एक दूसरे सत्यजीत सिंह जो है उनका रिफ्लेक्शन था। तो मेरा मैं जो व्यायाम की बात कर रहा था, वो व्यायाम जो आप अगर आज से शुरू कर दें, जिसमें कि हम अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को ब्राउन बना लें, तो मैं कहूंगा कि आज से आपके उस यात्रा की शुरुआत हो गई, जो कि एक नई यात्रा होगी, जो कि बिल्कुल ही यूनिक होगी, बिल्कुल अलग होगी, जो आज तक आपने वो यात्रा नहीं की। और वो उस यात्रा में हमारे को अपने आप से ये सवाल पूछने हैं कि मैंने आज के पूरे दिन में जो मुझे मेरी सक्सेस में मदद करेगा, उसमें मैंने क्या क्या किन किन चीजों के ऊपर आज फोकस किया। आज का जो मेरा पूरा दिन था उसमें मैंने क्या नया सीखा। आज जो मेरा पूरा दिन था उसमें मैंने क्या ऐसी चीजों को मतलब दूर कर दिया या अपने रूटीन से निकाल दिया जो मुझे सक्सेस में मदद नहीं करेगा। जो यथार्थ की बात है और जो सही बात यह है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा जो दिन है वो एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मैकेनिकल वे में निकल जाता है, बहुत ही रूटीन वे में, बहुत ही मुंडेन वे में निकल जाता है। और तभी मैं एक फिर से मूलभूत सवाल करूंगा कि हम लोगों को पढ़ाया गया बचपन से, और अभी भी हम लोग जानते हैं कि हमें अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। आई बिलीव वी ऑल नो दैट वी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, और इफ देयर इज अ डाउट वी कैन say that yes, I don't know whether I am a human being or not. Number one. Number two, हम जानते हैं there are now robots which can not only talk but then they can also emote. They can also they have emotions now. They have been programmed like that. वो patient के ख्याल रख रहे हैं हॉस्पिटल्स में,
वो स्कूल में जो कि क्रच है या स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके के रोबोट्स बन गए। अब मेरा मूलभूत सवाल फिर से ये है, और क्योंकि मैं मानव संसाधन क्षेत्र से आता हूं, कि भाई सवाल हमको अपने आप से फिर से पूछना है कि भाई क्या हम ह्यूमन बीइंग हैं या हम रोबोट्स हैं, और रोबोट्स और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? ये सारे सवाल हमारे को फाइनली उस फॉर्मूला की तरफ ले जा रहे हैं जो कि हमें बाय डिजाइन सक्सेस देगा। कोई है जो मुझे बता सके कि रोबोट और हमारे बीच में क्या फर्क है? Yes, different. We have feelings. सर वेरी रिसेंटली हमारे 2-3 स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग के, उन्होंने ये इमोशनल पोर्शन जो है वो उसमें डालने की कोशिश करी। उस पर एक प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे थे कि रोबोट्स में हम इमोशंस कैसे इन्फ्यूज करें और वैसा रोबोट बनाएं विद इमोशंस, रोबोट विद इमोशंस। सो ये बता ही रहे, उसका रिफ्लेक्शन आ ही रहा है। इसका मतलब वो जो हमारा जो फर्क था वो भी खत्म होता जा रहा है, फीलिंग वाला, करेक्ट? तो अब हम ये नहीं कह सकते कि रोबोट्स में फीलिंग नहीं है। वो कह रहा है रोबोट है वो, जो हम कहेंगे वही वो रोबोट करेगा। अभी हमने कुछ किया है रोबोट वाला काम? जब मैंने आपको बोला सिर्फ ब्राउन पे फोकस करो, हम लोगों ने रोबोट की तरह नहीं बिहेव किया? किसी ने हरे पे तो नहीं फोकस किया मेरे हिसाब से। तो मैं बेसिकली प्रूव कर रहा हूं धीरे धीरे कि हम भले ही ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं लेकिन हम रोबोट की तरह बिहेव करते हैं। सही है कि नहीं? यस सर। और अगर मैं आप लोगों से एक हफ्ते का बोलूं ना कि आप सुबह उठने से लेकर शाम रात के सोने तक का एक लॉग बुक बनाएं और उसको लिखें कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और अगर एक हफ्ते तक अगर आप उस नोट करें, आप पाएंगे उसमें 5% में भी 5% का भी फर्क नहीं है। 5% का भी फर्क नहीं है अगर हम अपना लॉग बुक बनाएं सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक क्या क्या करते हैं पूरे 24 घंटे में या 17 घंटे में या 15 घंटे में, और उस लॉग बुक को 7 दिन का अगर हम एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि उसमें 5% का भी फर्क नहीं है। और ये हम तभी करेंगे जब हम अपने साथ समय बिताते हैं। हम अपने साथ समय नहीं बिताते, हम धीरे 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 रोबोट बनते जा रहे हैं क्योंकि हमें एक प्रोग्राम्ड लाइफ जीने की आदत होती जा रही है। प्रोग्राम्ड लाइफ वो एक कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, वो एक नियम हो गया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर दाएं हाथ से ब्रश करते हैं और कल से बाएं हाथ से करें, बहुत मुश्किल होने वाली है। होगी कि नहीं? छोटी सी चीज है बदलाव की। मैं बोल रहा हूं अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, कल से अगर बाएं हाथ से करें, ये आसान होगा या मुश्किल होगी? सर बहुत अच्छा बोला है किसी ने कि सर रोबोट का एक्सपीरियंस नहीं है, और मुझे भी अभी ये लग रहा था कि वी आर बियॉन्ड ब्रेन। आई एम बियॉन्ड ब्रेन, मैं ब्रेन को डिक्टेट कर सकते हैं। yes. तो आप ओरिजिनली बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। Even all the while, I've been dictating him. The last 10 seconds when I told you to see Brown, you absolutely went by my dictate. Yeah. Nobody used their brain. They followed the instruction. That's it. Yes, yes. So, and we've been following, I don't know who all instructions so far, except us, except ours. True, sir. That's the profound thing I'm trying to convey, my dear friends. Right, sir. और हम फिर बोलते हैं कि हमारे सफलता में मतलब चाहे ज्योतिष शास्त्र का योगदान है या ग्रहों का योगदान है या सब साधु संतों का योगदान है या हमारे पिछले जन्म के कर्मों का योगदान है या आने वाले समय का योगदान। अरे भाई हमारा क्या योगदान है? हमने क्या किया? अपने कमियों को छिपाने के लिए ये सारे जितने भी ढाल होते हैं उनका सहारा ले रहे हैं। ना हम अपने साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, ना हम ब्राउन पे फोकस कर रहे हैं,
अभी हमने उसको तजुर्बा किया, अभी हमने उस चीज को महसूस किया कि हमारे ब्राउन्स अभी भी हमें क्लियर नहीं है। हम जानते बहुत सारी चीजें हैं, हम मानते कितनी चीजें हैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हम रोबोट्स बनते जा रहे हैं। और हमें बचपन से बताया गया कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग एंड नॉट ह्यूमन बीइंग, से अंग्रेजी है। मतलब अगर हम व्याकरण हमें मालूम है अंग्रेजी की, अगर रेनिन मार्टिन हमने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में, या कोई भी ग्रामर की किताब अंग्रेजी की, तो उसमें हमने बीन और बीइंग यूज किया है शब्द जी। तो कहाँ यूज करते हैं ग्रामर में हम अंग्रेजी में? ह्यूमन बीइंग इसलिए हमें कहा जाता है, ना कि ह्यूमन बीन। ये बहुत मूलभूत सवाल है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आज के दिन में पूछना, क्योंकि हो सकता है हमारे ब्राउन को खोजने में हमें मदद मिले इन सवालों के जवाब में। कोई बता सकता है कहाँ यूज होता है बीन और बीइंग? एनीबडी हैव रेड ग्रामर इन द क्लास ऑफ 7th 6th? Anybody who can type in the chat and tell me where we use been and where we use being? Being means उसका अस्तित्व है, बिल्कुल सही कहा इतारती, लेकिन हम अंग्रेजी में कहाँ उसको यूज करते हैं बीइंग को? वो लिविंग है बोल रहे हैं सर, ऐड भी कर रहा है। बीइंग मींस उसका अस्तित्व है, वो लिविंग बीइंग है, लिविंग है। लिविंग बीइंग क्यों कहते हैं हम लोग? बीइंग क्यों कहते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं तब से। बीन क्यों नहीं कहते? बीन, BEEN, and why BEING? कोई भी ग्रामर नहीं जानता? प्रदीप सर लिखा है सर, कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में बीन है, वेरी गुड, और बीइंग कंटिन्यूअस डूइंग लिविंग। excellent, excellent, excellent. Just has done in past. being is the past principle and being is present continuous. Yes, sir. Excellent. See, Sir, so why being is used for us is because we are not past, we are not been, we are being. Means present, we live in present, and we are continuously grow, we continuously learn. That is why we are called being, present continuous. मतलब अंग्रेजी से मतलब कितना सारा जो ज्ञान ले रहा हूं, और उस ज्ञान को हम अगर अपने जीवन में इसको उतार लें और अपने व्यवहार में उतार लें और अपने काम करने के तरीके में उतार लें, तो मेरे ख्याल से फिर हम अपने नाम को और अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं. So why we are human being and we are not robots, but we are becoming robots, and there is a very thin line now remain between robots and human being, because somehow we are becoming slave of our design. The design which we have chosen is very, very mundane, very monotonous, very routine, very, I will say, very transactional, if I am making sense. Yes, sir. So present continuous. Being इसलिए हम लोग हैं because हम present में रहते हैं और हम continuous learn कर रहे हैं, हम continuous grow कर रहे हैं. अगर हम नहीं कर रहे हैं continuous, that means we are slowly from human being becoming robots. And that is where I am saying spend 15 to 20 minutes with yourself. Find your browns. Find your browns of continuous learning. Find your browns of things which will help you to achieve your goals and your objectives, whatever your goal might be. But everything has to be part of your focus. Everything has to be part of your, as I said, brown color. Brown is a symbol. जो एक्सरसाइज हमने की है आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, और हम ये हमेशा उसको जब भी हम क्लासरूम में या डिस्कशन में या स्कूल के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर जब भी हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक अब हमें जिंदगी भर याद रहेगा कि हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो ग्रो करेगी. और यही पावर हमें दी गई है ईश्वर द्वारा. इसीलिए हमारे को ये जो ऑर्गन मिले हैं, आईज एंड ब्रेन,
and heart. Somebody said heart also. Yes. Yeah. These three things makes you emotionally passionate about your goals. Heart आपको passion देता है, emotions देता है, brain आपको focus देता है, eyes आपको जो है वो जैसे कहते हैं ना sense of color देती है, sense of focus देती है. मुद्दा ये है कि हम इन तीनों ऑर्गन को कैसे लेवरेज कर रहे हैं, कितना हम उनको यूज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे. ठीक है, और ये जितनी भी चीजें अभी तक हमने बातें की, सब चीजें इस फॉर्मूले से लिंक है. और फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से है कि, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, एंड यू कैन evaluate every month, every 6 months, every year, and if the score of this formula keeps growing, rest assured you will achieve success. The probability of your success with the increase of the score of this formula will be very, very high. Right? Formula ये है PV. PV is personal value or professional value. आपका मूल्य क्या है? आपका जितना मूल्य मतलब बढ़ेगा, उतना आपके सफलता के जो रीजन है, वो सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे. PV is equal to E into S into V. ये फॉर्मूला है, मैं टाइप करके दे रहा हूं. यहाँ बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बड़े आराम से आपको समझाता, लेकिन ठीक है, जैसा समय वैसा ही आपको समाधान निकालना पड़ता है. सर यही एक सक्सेस मंत्र हो गया, एडेप्टेबिलिटी. यस, PV is equal to E into, मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, E into S into V. ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन उसको समझना उतना ही जरूरी है. PV जो है वो आपका स्कोर है इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स. आप समझते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन. ये 4 वेरिएबल्स आप देख रहे हैं अपना दाएं हाथ में, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक स्कोर मिल जाएगा. और ये इसका कैलकुलेशन आप आज ही कर सकते हैं इस वेबिनार के बाद. और फिर आपको इसका आकलन करना है हर महीने, हर 6 महीने, हर साल. और अगर ये स्कोर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप जो है अपने सफलता को जल्दी से जल्दी पा पाएंगे. और ये फॉर्मूला बहुत रिसर्च के बाद निकला है. मेरे 24 साल का जो कार्यकाल रहा है कॉर्पोरेट में, उसके पूरे निष्कर्ष से निकला है. मेरे PhD का जो थीसिस थी उसमें से निकला है, और बहुत सारी चीजें हैं. तो मैं मतलब उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला का जो अर्थ है वो समझाऊंगा, और इसको कैसे इसका उपयोग करना है वो मैं आपको सामने रखूंगा. पहला जो E है वो है एक्सपीरियंस, तजुर्बा. तो इसमें आप जनरली अगर हम किसी से भी पूछते हैं ना कि अभी आपने मेरे ख्याल से जानवी ने बताया कि 24 साल का इनका तजुर्बा है मानव संसाधन के क्षेत्र पे, और किसी से भी अगर हम तजुर्बा पूछते हैं तो क्या बोलता है वो? हमेशा एक नंबर बताता है कि मुझे 4 साल का तजुर्बा है, 8 साल का तजुर्बा है. या अगर एज ए स्टूडेंट, मैं इतने सालों से जो है, पिछले 16 सालों से मैं स्टूडेंट हूँ, वो भी एक तजुर्बा है एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी. तो जो पहला आपका ई जो है, वहां पर आप स्कोर जो डालेंगे वो स्कोर है आपके तजुर्बे का, एक्सपीरियंस. और ये हमेशा नंबर में आता है, और ये समय का सूचक है. समझ में आ गया? एक्सपीरियंस जो है वो है आपका तजुर्बा, और ये हमेशा जो है नंबर में जब हम डालते हैं वो टाइम को डालते हैं, बिकॉज 1 साल के बाद वो जो तजुर्बा है वो 2 साल हो जाएगा, फिर वो 1.5 साल हो जाएगा या 2.5 साल हो जाएगा. तो आप जो समय आपका है वो आप यहाँ डालेंगे, इसका स्कोर आप डालेंगे. अगर आप स्टूडेंट के तौर पे हैं, आपका कोई तजुर्बा नहीं है, तो एज ए स्टूडेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे. ठीक है, ये नंबर आपका आ गया.
Very good. But experience is always counted in years or time. So only unit of measuring experience is time. Practice is absolutely right. But हम दूसरे ई की तरफ अब आ रहे हैं, जिसमें जो आपने लिखा है कुरनाल ने कि प्रैक्टिस है, वो चीज ही की हम बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो ई है वो है एक्सपोजर. एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपोजर. मतलब हमने कितना जो कहते हैं ना कि कितनी चीजों को हमने सीखा, कितनी चीजों को हमने लागू किया अपने कार्य क्षेत्र में, कितनी चीजों का ज्ञान जो है हमने हासिल किया जो कि नया है, पुराना ज्ञान नहीं, नया ज्ञान. सर इसको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं. ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं इसको सर. ऑब्जर्वेशन भी, यस. एनीथिंग व्हिच इज न्यू, एडिशनल, ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव ऑलरेडी हैव इज एक्सपोजर. इसको मैं अंग्रेजी में इस तरीके से कहूंगा कि एनी न्यू इनिशिएटिव, any new idea, any new observation, any new skill, any new knowledge, any new information, any new what you call as I said, practice, everything falls under exposure. समय हमारे हाथ में नहीं है. एक्सपीरियंस जो है हर साल के बाद बढ़ता जाएगा. हम नहीं बोल सकते कि आज अगर मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट के तौर पे 16 साल है तो मैं वहां 20 नहीं लिख सकता, मुझे 16 ही लिखना होगा. अगर मैं एज ए प्रोफेसर और एज ए लेक्चरर और एज ए कॉर्पोरेट जो प्रोफेशनल मैं जो है 5 साल से काम कर रहा हूं तो मैं वहां 8 साल नहीं लिख सकता, मुझे 5 ही लिखना होगा. तो यानी एक्सपीरियंस जो है वो समय से बंधा हुआ है. लेकिन एक्सपोजर जो अभी हमने बात की, नया ज्ञान, नई नॉलेज, नया स्किल, नया इनिशिएटिव, नई प्रैक्टिस, नया ऑब्जर्वेशन, anything new which has come because of your initiative and not by destiny and not because of time is called exposure. Am I clear or any doubt around exposure? Perfect, sir. Okay. So I will also type it. Exposure is anything new in terms of ideas, observation, knowledge, skills, practice, in addition to what you have today. In addition to what you have already. Got it? अब एक्सपोजर का कोई एग्जांपल बताएगा कैसे बढ़ाया जा सकता है एक्सपोजर? कितने बजे तक हमारे पास समय है नम्रता जी? सर 12:30 तक है, but then we can go beyond that. There is no time limit. ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूला के बाद फिर आप लोगों से सवाल जवाब जो भी 5-10 मिनट करना है वो कर सकते हैं. जी सर. कोई बता सकता है एक्सपोजर बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्योंकि एक्सपोजर अगर हम समझ गए हैं तो, और ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, पंडित के हाथ में, हमारी जन्म कुंडली के हाथ में, हमारे प्रोफेसर के हाथ में, या मेरे हाथ में? ये 4 ऑप्शंस हैं. लॉक करिए, क्या लॉक कर सकते हैं? केबीसी का सवाल है और ये 7 करोड़ से भी ऊपर का सवाल है. हमारे हाथ में. चलिए, आपको 7 करोड़ आपके बैंक खाते में चले गए और ये बैंक खाता है आपका सक्सेस. अगर ये आपकी मानसिकता है और ये आपका मतलब ब्राउन है तो आप जरूर सक्सेस पाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है. हमारे हाथ में. तो ये क्लियर हो गया. और इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सर एक ने लिखा है मोर एंड मोर ऑब्जर्विंग. वेरी गुड. ऑब्जर्विंग होम. और प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए. ऑब्जर्विंग होम, नॉट अदर्स. ऑब्जर्विंग योरसेल्फ in terms of how you are improving day by day, what you have learned new, what you have acquired new, what initiative you have taken today, what are the various books you have read,
what are the various initiatives you have taken, observing you. Exposure now become your brown, correct? Exposures becomes your brown. You focus on exposure, exposure expand. See the power of focus again. I will keep bringing brown and focus. तो एक्सपोजर क्लियर हो गया, कहां से हम ला सकते हैं, ये हमारे हाथ में है. तो आदमी का एक्सपीरियंस भले 1 साल हो फॉर एग्जांपल, लेकिन उसने 1 साल में क्या नया सीखा, क्या नया किया, क्या नया उसने मतलब इनिशिएटिव लिया, वो उसके हाथ में है. तो हो सकता है एक आदमी जो 5 साल से एक ही काम कर रहा है उसका एक्सपोजर 1 हो, लेकिन एक आदमी जिसने 1 साल में 5 चीजें सीख ली, उसका भी स्कोर 5 हो गया. 1 into 5 is 5 and 5 into 1 is also 5. So both are equal, that means. But somebody who is say 3 years experience and every year he has learned 5 new things, what would be his score? ज्यादा होगा उसका. सर मेरे ख्याल से आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट आपको और बढ़ाना पड़ेगा beyond your stereotype mundane routine. Absolutely. Your brown has to be beyond what you are reading. Yeah. It is also in terms of application. Yes. Are you applying the knowledge which you have acquired? True. That is the difference between knowledge, skill and competency, right? Competency, yes. Knowledge is the information you have learned. Skill is the application of knowledge. Yeah. And if you are doing that skill with a very passionate behavior, that becomes competency. Means you become competent. Yeah, expert. Yes, you become expert because you are applying that skill in a very, very unique and in a superlative manner. Yeah. That is the difference between an average guy and a high performer and a top performer. Perfect, sir. Correct? 15, yes. So किसको सक्सेस मिलेगा? जिसका स्कोर 15 है या जिसका स्कोर 5 है? 5 साल में एक ही काम किया या 3 साल में 5 नए काम किए? अब बताइए. देखिए, जवाब आप दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं. ये है, ये फॉर्मूला इसलिए इतना सक्सेसफुल हो रहा है, और ये मैं हर फोरम में मैंने ये फॉर्मूला शेयर किया, सीईओ लेवल पे शेयर किया, और people said that yes, this makes sense. अब 2 चीजें और रह गई हैं, S and V. तीसरा जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राउन है, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम अपने साथ कितना समय बिताते हैं उस पे बहुत निर्भर करता है. स्ट्रेंथ्स. S stands for strengths. Strengths मतलब anybody who wants to give the meaning of an example of a strength. अरे हम अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसी और के नहीं, अपनी. S stand for strength. Strength means any example? Strength means knowledge. सर ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है. कोई बात नहीं. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी हमारे मन में है वो जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई भी सवाल सिली नहीं होता, जवाब सिली हो सकता है. सर एक दूसरे ने भी बोला व्हाट यू आर गुड एट इज योर स्ट्रेंथ. ध्रुव, आई थिंक ध्रुव इज गिविंग very North Star kind of answers. Dhruv is the shining star. Very good. Experience in your line is your strength. Okay. Any example, Dhruv or Shah? Hard Shah. Both are from. Example दे सकते हैं अपने बारे में, अपने strength के बारे में. Dhruv, please reflect. Har, you also reflect. The example, strength.
So experience in your line for me. Be specific, Harth. Parents are your strength. Very good. Or the values which they have taught you are your strength. पेरेंट्स तो सबके लिए स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन हम बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. तो स्ट्रेंथ जो है वो आपका नेचुरल टैलेंट है. योर नेचुरल टैलेंट इज योर स्ट्रेंथ. हर आदमी किसी न किसी चीज में उसको खूबी हासिल है. जरूरत है उसको जानने की, और वो तभी हम जानेंगे जब हम अपने साथ समय ज्यादा बिताएंगे, ताकि ये हम जान सकें कि मेरे अंदर वो कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो किसी भी व्हाट यू कॉल समय में मेरी मदद करती है. सर मैं किसी भी सिचुएशन में जैसे कभी हम किसी को हेल्प करते हैं, ये मेरी आदत है, या कभी कभी झगड़ा होता है कहीं किसी के बीच में, तो आई एम अ गुड ट्रबल शूटर. तो ये भी स्ट्रेंथ मेरी हो सकती है. नहीं, बिल्कुल हो सकती नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए आपका नेचुरल टैलेंट है. जी जी. राइट. सो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है. स्पेसिफिक होना पड़ेगा और उसको हमें बढ़ाता रहना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रेंथ का नंबर बढ़ेगा. आज हो सकता है 1 हो. आप अगर उसके ऊपर जागरूक हो जाएंगे अपने स्ट्रेंथ के बारे में और स्ट्रेंथ को अपना ब्राउन बना लेंगे, वो फोकस में आ जाएगा, और जब वो फोकस में आ जाएगा तो अपने आप वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. फिर आप बोलेंगे कि नहीं यार, हर साल मुझे एटलीस्ट 1 स्ट्रेंथ ऐड करनी है अपने अंदर, या हर 6 महीने में हो सकता है. डिपेंड करता है, मतलब ये तो एक्सपोजर की तरह है कि आप क्या नया सीख रहे हैं, क्या नया पा रहे हैं. एक आदमी कोई भी किताब नहीं पढ़ता, एक आदमी 3-4 किताबें पढ़कर उसको अपने जीवन में लागू करता है, उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है. स्ट्रेंथ भी उसी तरीके से. स्ट्रेंथ मैंने जैसे बताया, ये आपका नेचुरल टैलेंट है. किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है कि वो बहुत ही क्रियात्मक हो, क्रिएटिव हो, जैसे नम्रता जो शूटर है. ध्रुव ने लिखा है सर, आई एम गुड एट राइमिंग एंड इमेजिनेशन. Excellent. So that is your strength. Now, very good. But we need to identify those strengths. Very important. Everybody has to spend 15 minutes every day and think that in the entire day, did I use my strength? In the entire day, did I leverage my strength? And where all I leverage, all I used it. Very, very important. Otherwise, क्या होगा? ये भी आपके ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड की तरह हो जाएगा, जिसपे कोई फोकस ही नहीं है. इसको आपको ब्राउन बनाना पड़ेगा. आपको ब्रेन को हमेशा बोलना पड़ेगा, बॉस इस पे फोकस करो, ये मेरा ब्राउन है, और ये एक्सपैंड हो जाएगा. See the power of focus again. I'm bringing the same subject time and again to make you feel that there is a huge power our brain has, provided we tell the brain which is my brown, and strength, exposure has to be your brown. Your PV score improvement has to be your brown. Your success has to be your brown. So strength जो है ये आपको आइडेंटिफाई करें, उसमें कितने हैं नंबर में डाल दें आप उसमें, बट उसको लिखे जरूर. और हर दिन जब आप 15-20 मिनट अपने साथ जब बिताते हैं और बिताना शुरू कर दें एज आदत, जैसे मैं भी करता हूं, कि आज के पूरे दिनचर्या में मैंने कौन सी अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से यूज की, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ जिसको मैंने अपना लागू किया अपने किसी भी काम में, या किसी भी आचरण में, या व्यवहार में, या बातचीत में, या प्रेजेंटेशन में, या क्लासरूम में, डिस्कशन में, कौन सी वो स्ट्रेंथ थी जो मैंने लेके आया. जैसे ध्रुव जो है कह रहे हैं कि इमेजिनेशन उनकी स्ट्रेंथ है. क्यों? जब क्लास में डिस्कशन होता है तो किस तरह की न्यू इमेजिनेशन वो लेके आते हैं. राइमिंग तो चलिए वो आपने शेर व शायरी में आप कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन जो है वो आप कहाँ लेके आते हैं वो इम्पोर्टेंट है. क्रिएटिविटी. somebody is good at as a speaker, as an orator. Somebody is very good in negotiation. Somebody is very good in influencing. Somebody is good very in terms of his analytical skills. कुछ भी हो सकता है, बट उसको आपको अपने अंदर झांक कर पता करना होगा. और इसीलिए मैंने जब शुरू में बोला ना कि आप अपने साथ कितना समय बिताते हैं. आर यू इन प्रेजेंट
Are you continuous? Are you continuously focusing on your strength? Are you continuously learning? Are you continuously improving your exposure? That is your continuous, my dear. Present, continuous. Not past, not future. Present. Very profound, very, very, very powerful. और स्ट्रेंथ में ये बहुत जरूरी है. अभी कोई भी आपके बारे में, अगर आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? ये सवाल था. कोई भी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपसे बात करे, आपको बोले कि भाई आप में ये खूबी है, आपको कैसा फील होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वेरी राइट. और कैसा फील करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं अपने बारे में. आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपकी आंखें चमक जाती हैं. ठीक है ना? अगर अब मैं ये बोलूं आप में ये कमियां हैं, अब आपका जो बॉडी लैंग्वेज वो कैसे होगा? नम्रता दे रही है बॉडी लैंग्वेज. Yes, sir. आपकी जो है आपका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाएगा, कंधे थोड़े से झुक जाएंगे, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव हो जाएगी, बैड फील होता है. बिल्कुल. नाउ सी द पावर ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. कौन सी चीज आपको लगता है आपको ज्यादा फायदा देगी, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है. एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बाहर है, उसको आपको एक्वायर करना है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को फोकस नहीं करना है, बट वो आपका ब्राउन नहीं होना चाहिए. वो आपका ग्रीन हो सकता है, आपका रेड हो सकता है, आपका ब्लू हो सकता है. ब्राउन आपका स्ट्रेंथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको सक्सेस दिलाएगा. मैं आज इस जगह पे हूं अपनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे हूं. इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है. कोई भी आदमी, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल आदमी आप ले लें, अपने कोई भी आपका आदर्श जो है उसको अपने सामने रख लें, वो अपनी जिस भी पोजीशन में पहुंचा है वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से पहुंचा है, ना कि अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की वजह से. वो अपनी खूबियों की वजह से वहां पे पहुंचा है, ना कि अपनी कमियों की वजह से. इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें कमियां नहीं है, लेकिन उसका ब्राउन बहुत क्लियर है. उसने अपने ब्राउन को इतना फोकस किया कि वो उसकी जो ब्लू था और रेड था, जिसको हम कमियां कह रहे हैं, उसके ऊपर वो हावी हो गया, और कमियां जो हैं उसकी वो और कम होती चली गई, और स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ता चला गया. आपका सक्सेस में आपको सिर्फ स्ट्रेंथ योगदान देगा, बट एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे भी फोकस जरूरी है, लेकिन उतना नहीं जितना स्ट्रेंथ पे. और स्ट्रेंथ इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं तो इतने सालों में, क्योंकि हमने इस तरीके की कोई बातचीत ही नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ. मेरा सिर्फ एक ही जो बहुत ही जिसे कहते हैं जो चिंता का विषय ये है कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो आपका एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ना बन जाए, क्योंकि आपने उस पर फोकस नहीं किया. बहुत चांसेस है कि वो ऐसा हो सकता है, और उसका एक मैं उदाहरण देता हूं. आपने अपनी बायोलॉजी में, साइंस के स्टूडेंट हैं बहुत सारे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन सुना होगा जी. सुना है वेस्टिजियल ऑर्गन? क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन? प्रदीप, बहुत आप विग्रेस तरीके से अपनी गर्दन हिला रहे हैं, जैसे मतलब आपका ब्राउन वेस्टिजियल ऑर्गन है. नहीं सर. लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है वेस्टिजियल, मतलब जो समय के साथ साथ रिडंडेंट हो गए. मैं क्या कह रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ को वेस्टिजियल ऑर्गन ना बनाएं. बिल्कुल सर. ये आपके शरीर में तो है जी, लेकिन क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो रिडंडेंट हो गई. yes. और वो तब आपको महसूस होगी जब वो दर्द करेगी. अपेंडिक्स का जो है, बहुत सही एग्जांपल आपने लिया. जब उसमें अल्सर होता है तब हमें पता पड़ता है कि हाँ, एक तो हमारे दाहिने पेट के कोने में एक अपेंडिक्स है, क्या फायदा है उसका? फिर हम उसको काट के फेंक देते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको फेंक देते हैं. स्ट्रेंथ को वेस्टिजियल ऑर्गन ना बनाए. ये मैं आपको एक तरह से वैधानिक चेतावनी दे रहा हूँ, जो कि हम लोग सिगरेट और शराब के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, जो ये आपके लिए हानिकारक है.
तो स्ट्रेंथ को एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बनाना वैधानिक चेतावनी है, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ जो है आपका तीसरा फैक्टर है पीवी स्कोर का। और फाइनली लास्ट जो वेरिएबल है वो है वी फॉर वैल्यूज, मूल्य, हमारे जीवन के मूल्य। हम अपने पूरे मतलब रोज के जो काम हम करते हैं, हमने कौन से मूल्य को अपने जो जीवन मूल्य है अपने, दूसरे के नहीं अपने, उसको हमने यूज किया कंसिस्टेंटली। और मूल्य आप मालूम है, वैल्यूज आर नॉन निगोशिएबल बिलीफ। इसके ऊपर आप किसी भी तरीके का आप मतलब वो नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप किसी भी तरीके का। आप उस पर बोलेंगे नहीं, मैं अगर मेरा वैल्यूज जो है वो मतलब जो भी मेरे सिद्धांत हैं, मैं उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कितने ऐसे मेरे वैल्यूज हैं जो मैं यूज कर रहा हूं अपने डे टू डे वर्किंग में, डे टू डे लाइफ में, वो नंबर आपका वी में आ जाएगा। बट ये वैल्यूज जो है कंसिस्टेंटली आपको यूज करने होंगे। ये नहीं कि एक दिन में किया और वो मैं लिख रहा हूं कि हाँ मेरा वैल्यू, ना, वो वैल्यू नहीं है। वैल्यूज वो होता है जो आप हमेशा नॉन निगोशिएबली अपने कार्य में, अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो क्रियात्मकता हो, चाहे वो परिश्रम हो, जो भी है, सच हो, कुछ भी हो सकता है। और वो अगर फिर से जैसे स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली, हमें अपने वैल्यूज भी हमें अपने स्पेसिफिकली पता होने चाहिए। दूसरों के कहने पे नहीं आपके वैल्यूज बनते, आपके अपने वैल्यूज, वो सिद्धांत, वो मूल्य जिसपे मैं किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर हम इस फॉर्मूले में हर जगह पे नंबर डालें, आपको एक नंबर मिल जाएगा आज की डेट पे। अब आपका काम होना चाहिए, कौन सी चीज है जो आपके हाथ में है इन चारों में से, जो आपके अपने हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं। कौन सी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है? कोई है? सब अपने आप में सर। एक्सपीरियंस कह सकता हूं, क्योंकि टाइम जो है, समय जो है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हर दिन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम चाहे एक्सपोजर करें ना करें, स्ट्रेंथ यूज करें ना करें, वैल्यूज यूज करें ना करें, एक्सपीरियंस का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो दिन है, वो महीना है, वो साल है। तो बाकी हो सकता है 1 1 1 हो, अगर 0 हो गए तो सारे 0 हो गए स्कोर। अगर आपके मूल्य 0 है, स्ट्रेंथ 0 है, एक्सपोजर 0 है, एक्सपीरियंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि वो तो समय है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे हाथ में एक्सपोजर है, हमारे हाथ में स्ट्रेंथ है, हमारे हाथ में वैल्यूज है। पहली चीज, हमारे को अपने साथ समय बिताकर इन चीजों को बहुत ही स्पेसिफिक तौर पे आइडेंटिफाई करना है, और फिर हमें कोशिश करनी कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, 6 महीने दर 6 महीने, साल दर साल, कैसे बढ़ाएं। अगर हम इस पे फोकस करना शुरू कर देंगे, माय डियर फ्रेंड, आई कैन एश्योर यू, यू विल अचीव सक्सेस बाय डिजाइन। जो हमने शुरुआत की थी ना इस पूरे वार्तालाप की, कि कौन सफल नहीं होना चाहता, मैं अब बोल रहा हूं कि अगर हम इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे अपने रोज के जीवन में, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, और मैं अपना उदाहरण अभी दूंगा इसमें, तो आप सफलता, जो आपने कहा कि हम सफल होना चाहते हैं, जो भी आपकी सफलता की परिभाषा है, वो आप जरूर अचीव करेंगे। ये प्रूवन फॉर्मूला है, ये कोई किताबी नहीं है। ये मेरे कम से कम मैंने 10,000 एम्प्लॉइज और जितने भी 20,000 लोगों से जो मैं इतने 24 सालों में जिनके साथ मैंने काम किया, उनका जब मैंने विश्लेषण किया कि क्यों कुछ लोग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और क्यों कुछ लोग एक ही जगह रह जाते हैं, और क्यों कुछ लोग बहुत निचले स्तर पे चले जाते हैं अपने
मतलब करियर में, परफॉर्मेंस के, करियर में या इवन लाइफ में, इसका वही निष्कर्ष निकल के आया कि उन्होंने या अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज किया, या उन्होंने अपने स्ट्रेंथ्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, या अपने एक्सपोजर पे कॉम्प्रोमाइज किया। एक्सपीरियंस तो चलो समय के साथ साथ बढ़ता गया, लेकिन उनका क्योंकि पीवी स्कोर नहीं बढ़ा, वो वहीं के वहीं रह गए। और आज भी जब दो लोग मेरे पास आते हैं कि भाई सर मुझे तो प्रमोशन नहीं मिला, मैं तो 8 साल से इस कंपनी में हूँ, मैं बोलता हूँ एक ये लीजिए फॉर्मूला, और जो कि उनको पता भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के दौरान उनको बता दिया है। मैं बोलता हूँ प्लीज मुझे अपना पीवी स्कोर बताएं और उदाहरण दें कि कैसे आपने इस पीवी स्कोर को बनाया है। और जिसका प्रमोशन हुआ है उससे भी बोलता हूँ कि भैया आप बताएं आपका पीवी स्कोर क्या है, और उदाहरण के तौर पे समझाएं कि कैसे आपने पीवी स्कोर बढ़ाया। और 100% समय में मैंने देखा कि जिसका पीवी स्कोर हाई था उसको जो है योग्यता के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे, पीवी स्कोर के आधार पे उसको प्रमोशन, प्रगति मिली। तो मतलब ये तो दूध का दूध पानी का पानी है। मतलब इसमें कोई भी आप भावनाएं नहीं ला रहे हैं क्योंकि नहीं वो बहुत अच्छा काम करता है। अभी अच्छा काम का मतलब उसको आप थोड़ा स्पेसिफिक बात करें। नहीं वो बहुत ही परिश्रम करता है, उसको आप दिखाएं पीवी में कहाँ परिश्रम कर रहा है, क्या उसका ब्राउन है, क्या उसका फोकस है। अब अगर मैं अपना उदाहरण पीवी स्कोर पे दे दीजिए तो 24 साल का तो मेरा जैसे कहते हैं कॉर्पोरेट तजुर्बा है, तो एक्सपीरियंस वगैरह मुझे 24 लिख सकते हैं। अब एक्सपोजर के तौर पे मैंने हर क्षेत्र पे काम किया, अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया पिछले 24 साल में। एक ही इंडस्ट्री में नहीं हूं मैं। अगर आप मेरा लिंक्डइन में बायोडाटा देखेंगे, मैंने हिंडाल्को में शुरुआत की, फिलिप्स में काम किया, फिर मैं जकार्ता में चला गया, वहां पे इंडोरामा में काम किया, फिर पेप्सिको में काम किया, फिर एल्स्टॉम में काम किया, फिर शॉ वॉलिस में काम किया, हिमालय दुबई में काम किया, और अब मैं कैडिला में काम कर रहा हूँ। अगर आप इंडस्ट्री देखें सब अलग अलग, तो ये एक्सपोजर हो गया। फिर अलग अलग रोल पे काम किया, मतलब कभी इंडस्ट्रियल रिलेशन में काम किया, कभी हायरिंग में काम किया, कभी ट्रेनिंग में काम किया, कभी कॉम्पनसेशन में काम किया। तो अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं मानव संसाधन के, उस सब में घूमा हुआ है। और ये इनिशिएटिव लेके, ये नहीं कि मतलब मैनेजर ने बोला कि हाँ उधर चले जाओ, नहीं सर मुझे उधर जाना है क्योंकि मुझे सीखना है, वो जो चीज है वो मुझे सीखनी है, तभी मैं आगे प्रगति कर सकूंगा। ठीक है, देन आ गया आपका किताबें लिखने का, ये भी आपका एक्सपोजर है। ठीक है ना, मैं जो आपके साथ अभी साझा कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये भी एक्सपोजर है मेरे लिए, क्योंकि मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए स्पीकर। और मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ग्लोबल फोरम्स में। क्यों? मैं भी आराम की जिंदगी जी सकता हूँ, संडे को मैं भी आराम कर सकता हूँ, जब मेरा वीकेंड है मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। पीएचडी मैंने की काम करते हुए, एक्सेलराइज से शुरुआत की, फिर एकेडमी ऑफ एचआरडी से खत्म किया, अब मैं दूसरी पीएचडी कर रहा हूँ। अब मतलब मैं आराम कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन काम करने के बाद 10 बजे 9 बजे उसके बाद मैं ये सारी चीजें करता हूँ। ठीक है ना, तो ये सब एक्सपोजर है। ये सारे जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ एक्सपोजर है। मैं पोइट्री की किताबें, मेरी 4 किताबें छप चुकी हैं। पोइट्री है, मैं ग्लोबल लेवल पे जाके जब भी सम्मेलन होते हैं तो उसमें बुलाया जाता है, तो मैं एज ए पोइट भी जा रहा हूँ, तो वो अलग चीज है। मैं चित्रकार हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो वो क्रिकेट खेलता हूँ, इंटरनेशनल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है। तो मतलब वो मैं अपना वो नहीं दिखाना चाहता, मतलब कि मतलब मैं कितना एरोगेंट हूँ और मैं अपनी सारी खूबियां बता रहा हूँ, नहीं। मैं ये बता रहा हूँ एक्सपोजर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। स्ट्रेंथ, मेरी जो स्ट्रेंथ है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पीकिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, जो भी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो मैं अपने काम में और काम के बाहर यूज कर रहा हूँ। और वो हर साल मैं कुछ ना कुछ उसमें मतलब बढ़ोतरी करता रहता हूँ। चाहे मैं कोई नया एक सर्टिफिकेशन करूँ, कोई नया मैं मतलब एक्सपोजर लूँ और उससे मेरा स्ट्रेंथ और बढ़ जाए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में, वो स्ट्रेंथ हो गया। और भी मेरे मूल्य जो हैं, जो मैंने माता पिता से सीखे हैं, चाहे वो सकारात्मकता है, चाहे वो
हमेशा एक सीखने की जो एक जिज्ञासा है, चाहे वो मतलब सच को सच की तरह ही बोलना है, ठीक है ना, उसमें कोई आप मतलब किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। हाँ, तो ये सब आप अगर आप देखेंगे तो ये मेरा पीवी स्कोर बढ़ाने में मदद कर रहा है। और आज मैं जहां भी पहुंचा हूँ इसी स्कोर के रोज बढ़ोतरी के हिसाब से ही पहुंचा हूँ मैं। और किसी को मैं मतलब ठीक है, भगवान हैं और वो हमेशा रहेंगे और वो सबके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए हैं। और जितने भी मेरे से भी जो सफल लोग हैं उनके लिए भी है। लेकिन मैंने बोला ना, आपका ब्राउन क्या है, आपका फोकस क्या है। आप मैंने जो शुरुआत की थी कि मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूँ, स्टूडेंट ऑफ बेसिक्स हूँ, तो मैं मूलभूत चीजों पे फोकस करता हूँ, बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हम मूलभूत चीजों पे फोकस करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होंगी। ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई डोंट थिंक किसी ने डिस्कस किया होगा ये। दिस इज सो फंडामेंटल एंड सो बेसिक। बट अगर हम उसका अर्थ समझ लें, उसका एसेंस समझ लें कि वो क्यों हमें बीइंग बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहें। continuous learning, continuous evolution, continuous exposure, continuous leveraging of your strength, continuous leveraging of your values, and continuous focusing on your brown. तो इसके साथ मैं अपना ये जो पूरा विषय था कि हम किस तरीके से, और ये पीवी जो है अगर स्कोर बढ़ता जाएगा बाय डिजाइन, आप जो है सक्सेस अचीव करते जाएंगे। ये निश्चित है। ये मैंने अपना उदाहरण दे दिया, आप भी किसी पे भी लागू करें। और आप जो भी आज से लागू करेंगे और मुझे 6 महीने बाद और 1 साल बाद बात करेंगे मुझे फोन उठा के, तो जरूर मुझे कहेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला मैंने लागू किया इसने मुझे परिवर्तित किया, इससे मुझे वाकई बहुत कुछ मुझे फायदा हुआ, मुझे सीखने को मिला, मुझे अपने ब्राउन खोजने में मदद मिली। कोई भी सवाल जवाब हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में पूछ सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत काफी समय ले लिया, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करते हुए। और अब मुझे उम्मीद है कि जो भी आज हमने बात की, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आऊँगा एक दिन जरूर, और मैं कोशिश करूंगा कि हम ऑडिटोरियम में इसी तरीके का कुछ ना कुछ बातचीत करें, क्योंकि हमारे कैडिला परिवार का भाग है। और मैंने वैसे भी प्रदीप को बोला हुआ है कि हम मिलकर हम लोग जो है बहुत सारी चीजें मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी का एक्सपोजर और स्ट्रेंथ वो बढ़े, और जो वैल्यू है कोलैबोरेशन का वो भी दिखाई दे। कोई भी सवाल जवाब पूछना चाहेंगे, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर बच्चों का रिफ्लेक्शन तो आ ही रहा है, बट बिफोर दैट even I would like to express it was so nice that our parent company is Kedla and is holding hand of a little university, little brother's hand, तो ये एक बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि we are safe and we are comforted and we are guided by our parent company Kedla. So ये फीलिंग तो है ही है। और आज का जो आपने था इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग था वो कि क्वेश्चन के बजाय उसको एब्जॉर्ब करने की ही अभी फीलिंग आ रही है कि उसको खाली अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लें। एंड स्पेशली जब आपने बोला कि जो फंडामेंटल चीजें आपने बताई, तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर बिल्डिंग डिजायर्ड हाइट की हम सकते हैं। बिल्कुल सही। यू हैव टॉक्ड अबाउट द वेरी फंडामेंटल थिंग्स, जो आपने 2 ई और एस और वी की बात बताई। तो ये सच्ची बात है जो आपने स्टार्टिंग में बोला, कौन हैप्पी होना चाहता है, कौन हेल्दी होना चाहता है। तो आई कुड कनेक्ट द एंटायर थिंग कि आपका जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ये पूरी प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस विल लीड अस टू सक्सेस and success will lead to happiness and health. So I can connect that thread, entire beautiful start किया सर। और स्पेशली मैं भी जब एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो आई कुड सी कि वो जो पीजी के स्टूडेंट रहते थे उनके हाथों में अंगूठियां होती थी। खासकर मेरा ध्यान तब जाता था जब वो लोग एग्जाम देते थे, तो उस समय हमारा काम खाली स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने का होता था। तो आई यूज्ड टू सी दे वेयरिंग मूंगा टू सफायर टू this all different kind of pearls, सब एक को तो 4-4 6-6 अंगूठियां। मैंने कहा तुमने क्यों पहना है? तो बोले इससे सक्सेस मिलता है। आई सेड अपने से ज्यादा आपको पत्थरों पे सक्सेस के
पर जो है विश्वास है. So अपने पर विश्वास नहीं है. उनका ब्राउन वही है. हाँ. So they used to get sensitized कि भाई हाँ हम क्या कर रहे हैं. बोले नहीं मम्मी ने पहना दिया. So you also start believing in this, you know. तो ये आज जो आपने, it was an eye opener session for every one of us कि ये कैसे हैं. तो जो आपने एक ट्रेड सीक्रेट दिया, इवन सक्सेस इज मेजरेबल, आज ये मुझे एक फॉर्मूला मिल गया उसका, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सक्सेस को मेजर करने की जब भी बात होती थी तो एवरीवन यूज्ड टू से इट इज सक्सेस इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट इज रिलेटिव, ऐसा करके बोलते थे. लेकिन आज एक फॉर्मूला, एक मंत्र मिल गया है कि नो नो, सक्सेस इज क्वांटिफाइबल, इट इज मेजरेबल, it is measurable. So perhaps this gives clue to all the HRs also and all the heads of the departments also for giving the promotion and incentives and all that stuff, and personal success also for an individual. Yes, that is the idea. Yeah. So मेरे को तो ये ही बहुत अच्छा लगा. And I being faculty in English as well, English literature and communication, I never thought of using this being and been. Grammatically, I was aware of the nuances, but then how it can be connected to our life and success, that perhaps was actually a very valuable thing for me. I got exposure to this. So this was an experience and exposure, I should say, to one of the kind, and I can add to my S over here, sir, and E also over here. So Beautiful. मेरे पीवी में आज ये ऐड हो गया सर, एक्सपोजर भी एक में ऐड कर सकते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर. एंड सर बच्चों ने भी कुछ रिफ्लेक्शन किया है. सर हमारी एडमिशन हेड है मिस्टर अनुज, एंड ही डज वेरी हार्ड व्हेन इट कम्स टू, स्पेशली पेंडेमिक में भी उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया कि किस तरीके से एडमिशन कराया जाए. तो उन्होंने भी अपना रिफ्लेक्शन किया कि आई हैव लर्नड वेरी न्यू वे टू सी द थिंग्स related to my success, and very nice presentation, sir. We'll never forget PV score. And one Dr. Kiran is also there. Dr. Kiran is a faculty of science, और उन्होंने ये बहुत अच्छा reflect किया. He's always very attentive when it comes to all this thing. So sir, students ने भी काफी लिखा है अच्छा. And now I hand over the chance to Pradeep sir, who is waiting eagerly for his reflections. Over to Pradeep. Thank you so much sir for this nice session. I think और बहुत easily आपने जो explain किया, I think ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम corporate world में है. बहुत आसान है किसी के ऊपर मतलब ये बोल देना कि उसको क्यों प्रमोशन मिला, नहीं मिला, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ की, बट उसको इस तरह से हम खुद से पहले रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद को क्वेश्चन पूछे कि हमारा ESV है क्या, EESV है क्या, उसके बाद हम जाएं बात करने के लिए, तो हमारे खुद के लिए अच्छा है. या ये हमारे लिए खुद के लिए पीरियडिक फीडबैक खुद के लिए है, टाइम टू टाइम. अगर हम हर 2 महीने 1 महीने में अगर अपना ESV अगर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हमें हक नहीं है कि हम जाके किसी को बात करें. तो हमारा PV तभी बढ़ेगा जब हम खुद उसको अपने पर सोचेंगे, इसके बजाय कि कोई आए तो हमको हाथ पकड़ के कहीं चलना सिखाए. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. My pleasure, and thanks for having me. Sir, again, we will follow the protocol, and one of our students, on behalf of student body, will, tender vote of thanks. And for that, I request Anuj sir to unmute Pankaj. Anuj sir, are you there? Sir, मुझे आज इतना अच्छा लगा कि काफी इस डायरेक्शन में है, लेकिन क्वांटिफाइबल कैसा हो सकता है, मेजरेबल कैसा हो सकता है, ये आज फिगर्स में मिलता है. तो बड़ा ही कन्विक्शन के साथ में और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हम बोल सकते हैं कि यस, दिस इज द मेजर. अदरवाइज समटाइम्स वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड वी गो एब्स्ट्रैक्ट आल्सो, कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है. लेकिन इसको फॉर्मूले में लेके आना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लेना, बहुत ही लॉजिकल और कन्विंसिंग फॉर्मूला है सर. Sir, I salute you. It has worked well, and that is why I didn't make it complicated, because a lot of people ask you, okay, how much weightages you should give for experience, or how much weightage should be for exposure. I said, let's not complicate it. Let's keep it simple. Multiplication, right, and ensure that we are increasing the number of each of these elements, especially the exposure, strength, and values, which is within our hand. right. And rest assured, more this product, what you call entire product of these 4 variables improve, you will automatically will be seen as one of the potential guy to achieve the next level growth. So मतलब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. जैसे प्रदीप बोल रहे थे,
हम तभी जाएंगे जब हमारा पीवी स्कोर बढ़े। आपका पीवी स्कोर बढ़ रहा है, आपके पास लोग आएंगे कि वाकई जो है आपने जो है अपने क्षेत्र में इतना अच्छा एक्सपोजर पा लिया है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी विजिबल है आपके काम में, और आपके वैल्यूज भी जो है आपके काम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। दीज आर ऑल एक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग which is fuzzy, which is invisible. Everything what we just spoke is nothing but behavior. It's all our what you call behavior. So your exposure is visible in the form of behavior, your strength is visible in the form of your behavior, and values is also reflected in the form of behavior. And behavior is measurable and behavior is observable. Both are there. Yes, sir. Now, I invite Pankaj from BTech's 5th semester to propose vote of thanks. Pankaj. Hello, ma'am. Audible? Yeah, audible, Pankaj. Good afternoon, everyone. I am Pankaj Saleh, currently pursuing Computer Science and Engineering from Indrasil University. Firstly, I would like to thank my faculty members for giving me this opportunity to deliver the vote of thanks to our today's speaker. So, we Indrasil University heartily thank you, Dr. Sanjeev Dixit sir, for the perfect logistic support and guidance he has extended to all of us in this webinar. We are overwhelmed by listening to your kind words and experience you shared with us. And of course, we are sure this would be a step forward to our success path. It was listening to you. Once again, we are really grateful your insight perspective. Thank you, sir. Thank you, Pankaj. You wrote a very beautiful script, and you read it out also very well. I think even improving our, as I said, spoken English and even written English is a very good step forward towards our exposure. ये भी एक बहुत अच्छा exposure है कि हम जिस भी भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं वो भले सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन जो भी आप बात कहना चाहें वो समझ में मतलब दूसरे को पहुंच रही है. Unless meaning is not compromised, आपका accent acceptable है. No, it's absolutely fine. It's very colloquial. So we all. So मैं हमेशा बोलता हूँ हम हिंदुस्तानी जो हैं वो अच्छे ट्रांसलेटर हैं. बहुत. क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हिंदी में ही सोचते हैं, और जो जितना फास्ट ट्रांसलेट कर लेता है वो उतना फ्लुएंट हो जाता है अंग्रेजी में. क्योंकि मैं तो हिंदी में ही सोचता हूँ ना, अंग्रेजी में नहीं सोच सकता क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है. सर, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि हाँ मुझे अब अंग्रेजी बोलनी है, तो मैं जो कहना चाहता हूँ हिंदी में और सोच रहा हूँ मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट. तो इसलिए हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो बहुत ही मतलब रुक के हम तो एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इसमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम उसमें पारंगत हो रहे हैं और पारंगत बन रहे हैं, और हमारा डिक्शन भी अच्छा है, हमारा एक्सेंट भी अच्छा है. कंपेयर टू यू लिसन टू एनी यूरोपियन गाय और French guy speaking English, it's pathetic. You will not even understand what they're saying. So I think sir, we have a base in Sanskrit basically, तो हम tongue twist कर सकते हैं. Absolutely. हमारा काफी अच्छा उच्चारण होता है, and most of the Indians are hired in BBC, जिसको हम एक benchmark मानते हैं. Not only BBC, all global CEOs are all Indians. Because they have a neutral accent, sir. Neutral accent, and as I said, they have the bestest of exposure, strength, and values, which we have inherited in our grooming time. हमारी जो upbringing है वही हमारे को, जैसे मैंने बताया ना, हमारे values, हमारी जो सोच है, हमारे grounds को पुख्ता करती है. तो strength पे focus करना बहुत जरूरी है, क्योंकि unfortunately हमारी upbringing में strength पे उतना नहीं focus किया गया. I don't think our parents also focus more on strength. They always focus on areas of improvement. Right. मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो कभी तारीफ नहीं मिली, लेकिन हिंदी में अगर खराब मिले तो बहुत डंडे पड़े. तो अब वो हमें डंडे याद हैं, लेकिन अगर मैथ्स के लिए हमारे को थोड़े से चॉकलेट मिल जाती तो शायद हम मैथ्स में हम लोग अभी PhD कर चुके होते. लेकिन ठीक है, तो वही, क्योंकि वही हमारी अपब्रिंगिंग है कि हमारा ब्राउन जो है वो हिंदी बन गया बजाय कि मैथ्स. वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज है हमारी अपब्रिंगिंग में. और
I think we need to ensure that slowly we come out of that entire orientation of wrong browns and right browns. थैंक यू सो मच सर. ये जो आपने इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम जो के ऊपर जो हिंट किया है कि वी एक्ट एज रोबोट्स एंड एज इंस्ट्रक्शंस, वो भी एक बहुत ही आई ओपनर था कि हाउ वी शुड अराइज और यू नो. और आपको सिर्फ मैंने 10 सेकंड में कंडीशन कर दिया. जी सर, बिल्कुल. सिर्फ ब्राउन देखें जी. तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ब्राउन सही हो, सही चुनाव हो ब्राउन का, और हम कंडीशन ना हो. जो सुने उसी पे सिर्फ नहीं शुरू करें, थोड़ा सा उस पर सोचें, और वही आपके एक्सपोजर जो है, आपके एक्सपोजर को बढ़ाने में मदद करेगी. जी सर. And we look forward for your proposal, sir, that we may have, you know, someday, you know, some live, you know. Yeah, look forward. I will definitely like to visit. Even if there is no session, at least I want to see my. For that, you are always, you know, sir, welcome. Family member. हाँ जी सर, बिल्कुल, हम लोग भी बहुत अच्छा लगेगा. Next week we have weekend, you know, scheduled for vacation and as per academic calendar. And post Diwali maybe we'll resume. We are not very sure what UGC has set guidelines for us in terms of live this physical classes. Still we are going through online classes. So that is why we are also running, you know, with alternate day stuff, with 50% reduction staff on alternate days we come. So that is why to come together, you know, is still far, you know, this possibility. Maybe by January we keep our fingers crossed that we'll resume to normalcy. So thank you so much, sir, once again. Thank you so much, Dr. Namrata. In fact, we were expecting today both the deans. We could have said, you know, hello to each other, but then they are busy with the interviews lined up today. And Abhinandan sir also had already asked for excuse that he has so many things lined up. So I, on behalf of Industry University, once again, thank you so much, sir. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much. Pleasure. Thank you, and wishing all you very, very best of improving your PV score. Yes. On a regular basis, have your focus on that. Have your browns very, very clearly identified, and good health, and be safe. And in advance to you and the entire, you can say, participants out there, and Indrashil University family, a very happy and prosperous Diwali. Sir, we wish you the same, sir. We reciprocate, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.